question. Can you share me how to start reading and how to inspire yourself? Start reading. You're already reading, my dear friend. You're reading those OTP messages. You're reading WhatsApp forwarded messages. You're reading those comments on Instagram and Facebook. ये तो मत सोचो कि you are not reading, unless you are अंगूठा छाप or you are 100% blind. Okay, so don't think that you are a non-reader. There is nothing called reader or non-reader. Okay, so let me ask Shreya a counter question. Since you said that how to start reading, how can I get started with reading? Can I ask you, Shreya, I want to start watching Bollywood movies. Where should I start from? ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं? अरे क्या ये क्या सवाल है? कुछ भी देखना है यार, अच्छा लगा तो कंटिन्यू कर, वरना छोड़ दे। तेरे को ऋतिक अच्छा लगता है तो ऋतिक देख, तेरे को दीपिका पादुकोण लगती है तो उसका पिक्चर देख। इट्स सो कैजुअल, राइट? But when it comes to reading, we take it too seriously. And that reminds me of my book, The Seven Habits of Highly Effective Readers. The first habit in that book is don't take reading too seriously. Now don't take this statement in the wrong way, okay? I'm not saying read casually. क्या मतलब पीछे कुछ टीवी चालू है, यूट्यूब का गाना चालू है, रीडिंग में वो नहीं बोल रहा हूँ. Don't take reading too seriously. The keyword is too. This question itself shows that you are taking it too seriously. Where should I start from? What is the right time to read books? मॉर्निंग और इवनिंग अमरुद. मॉर्निंग में मैंने सुना है कि ज्यादा हम ग्रास्प करते हैं, मतलब मे बी देयर इज सम scientific evidence for it, but do you say that what is the right time to chat on WhatsApp? Morning or evening? कब ज्यादा हमारा चैटिंग अच्छा होता है? Now you get my point, right? So if something is important to you, don't make it special, make it casual, because habits are casual. And something that becomes casual probably also becomes habitual. Something which is habitual is always casual. Watching TV, watching videos on YouTube, scrolling on Instagram. There are no rules. Gossiping, chatting on WhatsApp, बॉस को गाली देना, कैंटीन में गॉसिप करना, ऑफिस के सब they are all integral part of your daily routine. Yes or no? Do you plan? You don't plan. It's interesting, na? They are not part of your to-do list, but you do. Yeah, to-do list पे शामिल भी नहीं है, still we end up doing them because they are casual, right? So I think the second part of the question was inspiration. So inspiration, motivation थोड़ा ज्यादा ओवररेट हो गया आजकल, क्योंकि उसके व्यूज बहुत इजीली आते हैं ना, तो लोग उस पर बहुत वीडियोस बनाते हैं. See, more than motivation, what we need is momentum and not motivation. Momentum कब आएगा? When you place some motivational factors around that activity which you want to learn from. See, for example, मेरा एक कपल फ्रेंड है, रिलेशनशिप पे बहुत सुंदर उन्होंने क्या किया. See, एक कपल का फर्ज बनता है टू अपलिफ्ट ईच अदर. मैंने ऐसे कपल, आई एम नॉट सेइंग ओनली हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी दो दोस्त हो सकते हैं या भाई बहन हो सकता है. मैं तो लोगों का सहारा लेता हूँ खुद को ग्रो करने को. मुझे पता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन. तो कपल है, तो पति ने बोला कि अरे मुझे ना चाय की लत लगी है बहुत, तुमको पता है मैं 5-5 कप चाय पीता हूँ, तो कुछ करते हैं ना. और बीवी बोली हाँ यार. सी, फर्स्ट तो ही एक्सेप्टेड हिज वीकनेस. दैट इटसेल्फ इट टेक्स लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, कि बीवी के सामने ये बोलना कि आई एम फॉलिंग वीक इन समथिंग, इन इटसेल्फ हैट्स ऑफ टू हिम. क्योंकि पति लोग को इतना ईगो रहता है ना, मैं झुकूंगा नहीं, सब पुष्पा रहते हैं. तो ही सेइंग दैट आई वांट टू इंप्रूव, आई एम लैकिंग इन समथिंग. उधर ही आप जीत गए. एंड देन उन्होंने एक गेम बनाया कि आज मी वर्सेस यू सपोज. तो अगर मैंने आज 2 कप चाय पिया तो 2 लिखूंगा, अगर उसने 3 कप तो 3 कप. एंड एट द एंड ऑफ द वीक जिसका स्कोर कम होएगा वो जीत गया. दिस इज व्हाट, these are called motivational factors. Use numbers, gamify the activity. Of course, if it's a bad habit, so lesser the better. If it's a good habit, higher the better. So these are the things. Abhi exercise, I was struggling to exercise regularly. So I learned this from the most unexpected source. So I was reading a book, वहाँ पे AAA, Association of Alcoholic
anonymous करके एक संस्था है which works to help the people who are addicted to alcoholism. And there are some 12 steps which helps them, and there is 13 step. तो 12 steps तो सब लोग करते हैं, but अगर 13 step नहीं किया ना, there is a fair chance that they'll go back to their old behavior of drinking. You know what is that third step or 13th step? और 13th step किया ना, almost 100% लोग they have quit drinking. They did not start again. You know what is that 13th step? Can you believe? Can anybody guess? I have a question for you. Can you guess क्या हो सकता है वो? Start from one. No, no. To see the alcohol bottle again. No. I like that answer, but that's not the answer. To imagine Believe it in again. God. You can't believe क्या वो, and it is such a helpful step. And I've started using it everywhere. Of course, I don't drink. Okay, let me reveal that answer. I think somebody answered partially. Keep your glass upside down. Okay, I think तजुर्बा से बोल रहे कोई. So the 13th step was to help another addicted person to get rid of alcohol. And I learned the biggest lesson of my life, that if you have a problem, find out a person who has a similar problem and help that person solve that problem, and I bet you will solve your own problem. I should repeat this. Please write this down. If you have a problem, find a person who has a similar problem, help him or her to solve that problem, and your problem will get solved. हजम नहीं होगा. मुझे 6 महीना लगा है समझने को कि भाई मैं अगर दूसरों को हेल्प करूंगा तो मैं कैसे ग्रो हो जाऊंगा, वो आगे चला जाएगा ना, मैं कैसे हो जाऊंगा. इट हैज वर्क फॉर मी, ट्रस्ट मी. तो मैंने क्या किया, आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय फिटनेस रेजिम. मैंने 3-4 लोग जो उनका पेट था और वो भी 1 साल का जिम का फी भरते हैं और फिर 1 महीना जाता है, बाकी 11 महीने का डोनेशन हो जाता है. या तो उनको बुलाया कि भाई मेरे पास टेरेस है, लेट्स मेक यूज ऑफ इट, और थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स है, हम कुछ नहीं तो मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, मुझे तुमको सिखाना है. मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखा है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ट्रेनर, बट मुझे तुमको सिखाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में. और मैं भी उनके साथ कर रहा था. ऑब्वियसली हम साथ में करेंगे. जहां पे 10 बर्पीज थे वहां पे 12 बर्पीज मारने को उनको एनकरेज किया. 10 नहीं, तू 12 मार सकता है. ऑब्वियसली मैं भी 12 मारूंगा ना. एंड यू नो व्हाट, आई हैव गॉट बिग बाइसेप्स एंड 6 पैक्स. एंड द बोनस, द ऑक्सीटोसिन that I got, the happiness कि मैंने दूसरे की हेल्प की. Of course, those guys are in love with me. They have fallen in love with me कि भाई अमृत दादा ने हमारे ट्रांसफॉर्मेशन किया सेल्फलेसली. बट उनको ये नहीं पता था कि उनको इंस्पायर करने के चक्कर में मैं खुद इंस्पायर हो रहा था. Because if I become a source of inspiration for somebody, I have to remain inspired. And ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं आर्मी. आप इंडियन आर्मी में वो राइफल शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, ये बॉम्ब वो सब तो ट्रेनिंग ठीक है, कोई भी सीख लेगा. दैट इज नॉट द मेन थिंग. सबसे रोज उनको क्या सिखाया जाता पता है? व्हाट टू डू ऑन द कॉम्बैट फील्ड, ऑन द बैटल फील्ड. दे आर बॉम्बार्डेड विद दिस लाइन, दिस मोटो, हाउ कैन आई सेव माय ब्रदर ऑन द राइट एंड हाउ कैन आई सेव माय ब्रदर ऑन द लेफ्ट. इतना ही करना है. जब मेरे लेफ्ट और राइट के भाई को मैं बचाऊंगा ना, तब हम जंग जीतेंगे. या दुश्मन को मार के जंग नहीं जीता जाता है, या खुद मर के जंग नहीं जीता जाता है. अरे मरोगे तो जंग हारेंगे ना. हम बोलते हैं ना, मैं देश के लिए मर मिटने को रेडी हूं. अरे मरना नहीं है, मार के जिंदा लौटना है. तो सोचो, हर इंसान, हर सोल्जर, हर फौजी ये सोचेगा कि मेरे लेफ्ट और राइट को मुझे बचाना है, विल विन द वॉर. What a beautiful thought, right? Just सोचो बिनल, अगर ये फिलोसॉफी हम हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लाएंगे तो, that my job is to help the person sitting on my right cubicle and in my left cubicle. You will thrive, they will thrive, the company will thrive. Yes or no? I'll ask you a question, okay? Binal, you are the boss in the company, and you have 2 candidates, and you have to promote one of them. Now, first candidate is
इज अ परफेक्शनिस्ट, ही कम्स ऑन टाइम, सब किया दिया हुआ काम परफेक्टली करता है, या रेयरली कुछ गलतियां करता है, इज वेरी कोऑपरेटिव, एरोगेंट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, हाँ, पर उसका काम वो परफेक्ट करता है। दूसरा बंदा है तो सबकी हेल्प करता है, वो किसी को, अरे वो जो शाय लड़का है जो मीटिंग में थर थर कांपता है, उसको जाके मोटिवेट करता है, अरे तू भी बोल सकता है, तुम्हें बस ऐसा ऐसा इतना ध्यान रखना है। किसी को पावर पॉइंट बनाने में हेल्प करता है, है तो वो मार्केटिंग में, पर सेल्स में जाके उनको कुछ टिप्स देता है, बस सबको हेल्प कर रहा है। क्या चांसेस आप किसको प्रमोट करोगे? Second one, obviously. सेकंड को। बट मैंने बोला क्या कि ही इज डूइंग हिज ओन जॉब वेरी वेल? मैंने बोला भी नहीं, बट यू अज्यूम, राइट, कि अगर वो दूसरों को हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली खुद का तो वो अच्छा ही करेगा। Definitely. क्यों क्यों हम ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा प्रमोशन, नो, मेरा पगार, मेरी ग्रोथ, मेरा करियर, सब सेल्फिश, मैं मेरा पूरा अभी फोकस चेंज हो गया, आई जस्ट फोकस ऑन अदर्स।